Hello students, so today we are going to start our new chapter, that is gravitation. Okay, so now let's see that what are the topics that we are going to cover in this chapter. The topics are, the very first is gravitation, next is universal law of gravitation, then free fall, acceleration due to gravity G, then determination of G, mass versus weight, pressure versus thrust, buoyancy, Archimedes principle and relative density. Okay, so these are the topics that we are going to cover in this chapter. Now, the first topic is gravitation, children. Gravitation is also forming the title of your chapter. So, in this chapter, basically, we are going to learn about gravitation. Okay. Now, I'm sure that you have not studied in detail about the gravitation, but you might have heard about the word gravity, okay, or you might have heard about the gravitational pull of earth or gravitational force provided by the earth. So here in this chapter we are going to talk about a phenomenon under which earth tends to attract everything towards itself or every object towards itself. Okay, so let us begin with the gravitation, and I'll begin with the example. Okay, few examples. So let us look at some examples or some things happening in our day-to-day life. I mean, keep on happening, but that is quite strange, or which really creates curiosity that why such things are happening. So there has to be reason behind that only. Okay, so let's see the first example, like this apple. Okay, we can see that this apple is detaching from the tree. So have you ever thought about this, that why apple, and then not about only apple but any other fruit that comes downward towards earth only. ठीक है ना, वो लेफ्ट और राइट भी तो जा सकता है, चाहे तो वो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरता है? ठीक है, then let's see the next example, that is here you can see that here these people are playing ball. Okay, अब बॉल तो आप भी खेलते होंगे, so you might have seen that whenever we are playing the ball and when the ball goes in the upward direction, then after some time it will fall downward only. After going to some height, it tends to fall towards the earth. Okay, then next example, yes, this is of rain droplets. You can see that the rains are falling towards the अर्थ. ओके, तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, तो जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें भी नीचे की ओर ही गिरती हैं. Now let's see some natural phenomenon here. You can see that since childhood आप पढ़ते आ रहे हैं that planets revolve around the sun. Okay, let's take the example of the moon which keeps on revolving around the earth. So that moon which is far away from the earth, वो ऊपर की ओर है फिर भी वो नीचे की तरफ गिरता नहीं है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंज. ठीक है, कोई भी चीज है, पेड़ पे एप्पल है, हम बॉल खेल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके नीचे की ओर ही गिरता है. बट व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग विद द मून? ओके, सो दीज आर द फ्यू रीजंस. Now, whatever the thing or whatever the examples we saw here, these all things are happening, yes, just because of the yes, because of gravitation only. Okay, so we can say that all these movements are possible because of gravitation. Okay, or we can say that gravitation plays an important role in this also. So this attraction by which earth tends to attract every object towards itself is called gravitation. Okay, now next topic we'll see that how Sir Isaac Newton came or arrived, or how did he started thinking about the gravitation, and he gave the famous law of gravitation. Okay, now we all are aware about this story, the famous story. ठीक है, जब भी हम gravitation के बारे में डिस्कस करते हैं, ये स्टोरी हमेशा उसका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है, जिसमें हमने देखा है that once Sir Newton was sitting under an apple tree and an apple falls on his head, और फिर उन्हें फिर ये हुआ कि भाई ये एप्पल जो है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है. ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन इंसिडेंट दैट हैपन, और ये हमारे आसपास काफी बार होता है, लेकिन दैट वाज द सर न्यूटन जिन्होंने
who gave a lot of attention on this incident. Okay. इसके पीछे एक और भी मैं चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब ये स्टोरी हुई तो ऐसा माना जाता है कि तब जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, वैसे उस वक्त चल रहा था प्लेग। ठीक है, प्लेग के कारण सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गई थी, जैसे कि अभी बंद है। आप अपने घर पे हैं, वैसे ही सर न्यूटन और दूसरे लोग भी अपने घर पे थे। लेकिन आप ये देखिए कि सर न्यूटन ने इस पूरे प्लेग के टाइम पे, जब सब कुछ बंद था, जब सब लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शट ऑफ हो गया है, तब उन्होंने अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोची, ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने इतना रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही डिस्कवर्ड दिस ग्रेविटेशन। ओके, तो इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट, तो ये है कि कोई भी चीज अगर आपकी इच्छा है तो वो आपको कुछ भी अच्छा करने से या नया डिस्कवर करने से रोक नहीं सकती। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि यू पीपल शुड नॉट गिव, you should not say that these are the obstacles, so we should stop learning, और हमें ऑनलाइन समझ में नहीं आता, दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अगर इच्छा है तो आप कोई भी समय पे वो चीज को कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, so coming to the story only, so this is about the Sir Newton, that an apple fell on his head and he started thinking that why this apple is falling towards the earth only. I mean, apple can move to the left, to the right, or it can stay to the tree only. Okay, फिर उन्होंने सोचा कि does the apple attract the earth? I mean, if the according to him, if the apple is falling towards the earth, that means the earth is attracting the apple. So it's like apple also attracts the earth. ठीक है, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। फिर उनके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या अर्थ जो है वो मून को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मून भी तो ऊपर ही है। ठीक है, एप्पल ऊपर था, एप्पल नीचे गिर गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक टाइम पे समझते हैं कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो नीचे गिर रहा है, फोर्स लगा रहा है एक तरीके का। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर अर्थ लगा रहा है तो क्या एप्पल भी अर्थ पे लगा रहा है फोर्स। ठीक है, फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई क्या अर्थ जो है वो सिर्फ एप्पल पे फोर्स लगा रहा है या फिर वो मून पे भी लगा रहा है। फिर उनके दिमाग में ये भी आया कि क्या जो भी चीजें हैं, मतलब अगर वो मून पे मान लो अगर फोर्स लगा रहा है तो मून क्यों नहीं ग्राउंड पे गिर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अर्थ इज ओनली अट्रैक्टिंग द एन एप्पल, और इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग ऑन व्हाटएवर इज देयर ऑन द अर्थ। ओके, जो भी चीज है अर्थ पे, क्या वो सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। सो देयर वर सेवरल क्वेश्चन दैट कम्स ऑल ऑफ सडन इन हिज माइंड एंड दैट हैज स्टार्टेड बॉदरिंग हिम। ठीक है, जो उन्हें परेशान करने लगे कि यार ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है और इन सब के पीछे रीजन क्या है। Then he did extensive research and experiment and he came to the conclusion, and he came with the gravitational universal law of gravitation, which we are going to learn in the next lecture. Okay, but uh, in this lecture I am going to tell you about the reason, or about the force that actually governs the motion of the moon around the earth, you can say. Okay, now see here, see motion of the moon around the earth, इसका हम explanation देख लेते हैं। Here you can see that this is the earth and this is small is the moon which is moving at a particular speed around the earth. Okay, तो अब ये जो चीज है इसको हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है जिसको आप देख सकते हैं। ये जो एक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है ना, इस ब्लैक स्पॉट को आप समझिए दैट इट इज द अर्थ, sorry, it is your hand which is holding a stone. This is a green color, this is a green color stone, and you are holding this stone with the help of this thread. ठीक है, ये क्या है, एक येलो कलर का थ्रेड है जिसको आपने स्टोन को पकड़ रखा है। ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है ये बता रहा है आपकी मुट्ठी है जिसमें आपने पकड़ रखा है स्टोन को, और अगर आप इसी स्टोन को ऊपर की तरफ हाथ करके ऐसे गोल गोल घुमाएं, मतलब इस तरीके से घुमाएंगे एक पर्टिकुलर उसमें, तो आप पाएंगे कि स्टोन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड में और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या है, मोशन कर रहा है।
ठीक है, तो इसी तरीके से जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, चारों ओर घूमता है, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर होता है, कंप्लीटली सर्कुलर तो नहीं होता, बट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, इलेप्टिकल होता है एक्चुअली में थोड़ा सा। तो लेकिन हम अभी के लिए उसे सर्कुलर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज व्हाट, द स्टोन इज मूविंग लाइक दिस वे इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज हियर यू कैन सी दैट from the center from the center a force has been, a constant force has been exerted on this pebble, and that is known as your centripetal force, ठीक है। a continuous force we are giving to this stone so that it can move through this path, through this circular path that you can see, ठीक है। और ये जो path है इसमें आपका स्टोन, अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स, ये जो सेंटर से प्रोवाइड हो रहा है, ये फोर्स अगर नहीं प्रोवाइड होगा और आप पत्थर को छोड़ देंगे तो पत्थर क्या होगा, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा और मूव करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सेम यही कंसेप्ट जो है वो यहाँ यूज होता है। अर्थ भी जो है वो सेंटर से क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका जो ये मून है वो एक पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहा होता है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। दैट्स व्हाई मून tends to revolve in a particular orbit around the earth, and it never seems to be falling towards the earth. Okay, now the next thing we are going to see is, हम सर न्यूटन को एक और क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था कि ठीक है, अगर अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? तो इसका आंसर जो है वो है यस, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो अट्रैक्ट करता है तो क्यों हमें अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। तो ये चीज अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, why the earth doesn't move towards the apple, ठीक है। this was the next question that came into Sir Newton's mind. So the reason behind this is it is because of the second and the third law of motion. अब हमने सेकंड और थर्ड लॉ तो पढ़ा ही है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एप्पल और अर्थ जो है वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं, पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करते हैं। लेट F1 बी द फोर्स दैट इज ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ, ठीक है। आपका जो अर्थ है वो एप्पल पे क्या F1 फोर्स लगा रहा है, और F2 बी द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल। एप्पल जो है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F2 से, और अर्थ जो है एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1 से। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू F2, दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो सेम होगा, ओके। सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो वही चीज यहाँ हो रही है। तो भाई फोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि मास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या आप ये कहिए कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, ठीक है। इफ अ फोर्स इज कांस्टेंट, यहाँ देख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हमने किससे पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये पढ़ चुके हैं, दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। So if a force is constant, so I can say that acceleration is inversely proportional to mass, okay, inversely proportional to mass. Inverse proportion का मीनिंग ये हो गया कि आपका मास अगर इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो मास इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो मास आपका डिक्रीज हो रहा है, और अगर मास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो मास इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है, एक्सेलरेशन और मास का जो ये इनवर्स रिलेशन आया, वो अब कैसे हो इस चीज को क्या करे, गवर्न करेगा किस चीज, देखिए अब आप एप्पल को ले लीजिए, एप्पल का मास बहुत कम है, ओके। द मास ऑफ एप्पल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। हम तो समझ सकते हैं कि मास ऑफ एन एप्पल विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है, वो एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ।
तो जब इसका मास एकदम कम है, एप्पल की बात हो रही है, जब एप्पल का मास एकदम कम है तो उस हिसाब से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसका मोशन आपको काफी क्लियर दिखेगा, ठीक है। जबकि उसी कंपैरिजन में आप अर्थ को देख लीजिए, अर्थ का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन होगा। अब एप्पल के रिस्पेक्ट में तो हम अर्थ के मास को इनफाइनाइट ही समझ सकते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में समझ लीजिए काफी बड़ा है, तो उसका एक्सेलरेशन 10 to 0 मतलब 10 to 0 मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो मूव तो करेगा लेकिन उसका मोशन जो है एक्सेलरेशन कहीं जीरो से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, भैया वो इतना कम होगा। समझ में आ रही है बात, इसीलिए अर्थ जो है वो आपको एप्पल की तरफ मूव होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। हमने ग्रेविटेशन के बारे में समझा दैट व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ दैट इट इज अ काइंड ऑफ it is the tendency of the earth that attracts everything towards itself, ठीक है। एक अर्थ का पुल है, एक अर्थ की टेंडेंसी है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। और एक और बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। ये यूनिवर्स में जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको सबसे वीकेस्ट माना गया है, ठीक है। मतलब वो अप्लाई होता है तो इतना प्रॉपरली दिखता नहीं है किसी किसी केसेस में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। देन फिर हमने देखा कि किस तरीके से मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, और फिर हमने देखा कि कोई भी जो चीजें हैं वो डायरेक्टली आपके अर्थ पे आकर गिरती हैं, और हमें अर्थ क्यों किसी और की तरफ मूव होता हुआ नहीं दिखता, मतलब एप्पल की तरफ या कोई और चीज है, कोई और फ्रूट आप ले लीजिए, कहीं और वो मूव होता हुआ नहीं दिखता, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर इजैक न्यूटन। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग, ठीक है ना। होपफुली द स्टोरी विल इंस्पायर यू और आप थोड़ा और मेहनत करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, कीप लर्निंग।